Good morning, students. So, today we are going to further read the chapter Human Health and Diseases. This is of class 12th biology, and today we are going to understand about the few methods of uh, how to how to protect from the diseases, because we have studied already that there are various diseases which are caused by different kinds of pathogens. So today we are going to understand about what are the uh, ways in which we can prevent the disease. So I'm going to share you the image in which there are methods of prevention of diseases are there. So this is the image. This is the image of NCRT. And it shows that for diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. So, these are vector-borne diseases. You know, malaria and filariasis both are vector-borne. Malaria is spread by female Anopheles mosquito, and filaria is or elephant foot is spread by the Culex mosquito. And malaria is a protozoan disease, and filariasis is a roundworm disease. So they both are transmitted through the spread of insects, their own variety of insects. So if we want to control the disease, we have to eliminate the vectors and their breeding places as well. तो जब मलेरिया फैलने लगता है तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर देती है कि आप मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी में सोइए और आसपास कहीं पानी भरने ना दीजिए, और पानी भरा है तो वहां पर दवाई का छिड़काव करें, मस्कीटोस को किस तरह से भी फैलने ना दें। तो इस वजह से अगर हम किसी भी तरीके से इन वेक्टर्स को स्प्रेड होने से, इनकी मल्टीप्लिकेशन होने से रोकेंगे, तो हम बीमारियों को भी रोकेंगे। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। जो मैं बात कह रही थी, पानी नहीं भरने देना, वही बात यहाँ पे है। अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गम्बूसिया। तो गम्बूसिया एक ऐसी फिश है जो इंसेक्ट लार्वे को खाती है, मॉस्किटो लार्वे को खाती है। तो इस वजह से इस मछली से भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट बोर्न या मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिजीजेस को। इन एंड Gambusia in ponds that feed on the mosquito larvae, spraying of insecticide in ditches. तो इंसेक्टिसाइड्स भी किसी कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स एटसेट्रा। In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. और अच्छा हो सकता है कि दरवाजों के साथ साथ जाली भी लगी हो, तो जिससे भी शाम के वक्त मच्छर नहीं आते हैं। And such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito and diseases like dengue and chikungunya in many parts of India. तो एडीज एक ऐसा मच्छर है जो कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। इंडिया में पर्टिकुलरली डेंगी और चिकनगुनिया को एडीज मच्छर फैलाता है। तो इस वजह से इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, और इसी तरह से हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से प्रिवेंट हो सकते हैं। नाउ एडवांसमेंट
Advancement made in biological sciences have armed us effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. यहाँ पे बात हो रही है अब वैक्सीन्स की। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी मांगती है, यानी कि वैक्सीन की डिस्कवरी अगर करनी है तो अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है। कई सारे कंट्रीज उसको डिस्कवर करने में लगे हुए हैं और जैसे ही वो आएगी तो इट विल बी एडमिनिस्टर्ड इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन वी कैन से कंट्रोल में आएगा कोरोना। तो इस वजह से वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरल होती हैं, वो कंट्रोल होती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स भी बहुत ही बड़े स्केल पे इट वाज स्प्रेड, बट जब व्हेन इट्स वैक्सीन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, Fabio and Salk vaccine. So that vaccine was then administered. So, Edward Jenner has discovered the smallpox vaccine, and that was administered, and it was administered for large, we can say, for a long period of time. Then there was one time in on which there was no patient or no new patient of smallpox on left on earth. तो अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बहुत ज्यादा अच्छे से चलाएं, पूरे कंट्रीज में चलाएं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम उस पूरी बीमारी को अर्थ से इरेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स जैसी अब डेडली डिजीज अब अर्थ पे कभी भी नहीं होती, अब किसी को नहीं होता स्मॉल पॉक्स। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस have been controlled to a large extent by the use of vaccines. वैक्सीन के ही यूज से और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे पोलियो की, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस की, ये सब बीमारियां भी वैक्सीन की मदद से ही खत्म हो चुकी हैं। अब नया कोई पेशेंट निमोनिया का भी नहीं होता, नया कोई निमोनिया नहीं, पोलियो का नहीं होता, बिकॉज पोलियो इज ऑल्सो इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। So late in 2013 or 12, it was eradicated and no new patient is discovered from then. बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके भी कई सारी हम वैक्सीन्स को बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पर आया है, इसमें एक पूरा एक यूनिट है हमारा, एक चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। एक्चुअली में इसमें डीएनए की मदद से वैक्सीन बनाई जाती है, एंटीजेंस की मदद से वैक्सीन बनाई जाती है, वायरल पार्टिकल्स की मदद से। तो यही आपकी बायोटेक्नोलॉजी का रोल होता है। Now we will move to a topic that will be immunity. So here we will complete that paragraph. Biotechnology, about which you will read more in chapter 12, is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. तो एंटीबायोटिक्स भी नए नए बनते रहते हैं, मार्केट में आते हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज की को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब immunity. Now we are going to study about immunity. Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. तो हर रोज हमें कोई ना कोई infectious agents से हम लोग expose होते हैं, और few इसमें से exposure result in disease. कुछ exposure से हम लोगों को disease हो भी जाती है, हम चौंकते हैं, क्यों? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. Because ये इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी डिफेंड करती है, बॉडी के पास एक एबिलिटी है लड़ने की बहुत सारे बाहर से आए हुए एजेंट से। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity. ये पूरी एबिलिटी होस्ट की लड़ने की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें इम्यून सिस्टम देता है, ये पूरी एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो फाइट कर सके किसी भी डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म से, ये इम्यून सिस्टम से मिलती है ऑर्गेनिज्म के, और इसको इम्यूनिटी कहते हैं।
This ability to fight against disease is known as immunity. Immunity is of two types. Immunity दो तरह की होती है, innate and acquired immunity. तो innate और acquired immunity में innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different type of barriers. तो innate immunity non-specific होती है, मतलब सबके लिए एक जैसी होती है, कोई स्पेशल हर एक के लिए अलग तरीके की नहीं होती, सबके लिए एक जैसी इम्यूनिटी जो होती है और जो बर्थ से प्रेजेंट होती है उसी को innate immunity कहते हैं. The immunity is present by the birth. This is accomplished by providing different types of barriers. और ये 4 तरह के barriers की वजह से होती है. बॉडी में 4 तरह के barriers हैं, उसकी वजह से आप innate immunity आपको मिलती है. Innate immunity is non-specific, ये हम पढ़ चुके हैं. It's present from the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers. These 4 type of barriers will prevent the entry of pathogens. ये pathogens की entry को हमारे अंदर बंद कर देते हैं. Physical barrier सबसे पहला है, जैसे हमारी skin. Skin main barrier है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री बंद होती है हमारे अंदर. म्यूकस कोटिंग हमारी अंदर भी हमारे एक लेयर होती है जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, वो भी ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को हमारे डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स में ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है. देन रेस्पिरेटरी एरियाज में मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरियाज में मिलेगी एंड यूरोनोजेनिटल एरियाज में भी मिलेगी. एंड इनका काम क्या होता है, दैट ऑल्सो विल ट्रैप द माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी. फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, वेरियस chemicals which are released by the organs inside the body, those come in the physiological barrier. जैसे कि स्टमक हमेशा एसिड रिलीज करता है, माउथ में से सलाइवा रिलीज होता है, टीयर निकलते हैं आंखों में से, ऑल दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. और इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती, उस ऑर्गन में कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं हो सकते. तो दैट इज द वे द फिजियोलॉजिकल बैरियर take care. Cellular barriers. Certain types of leukocytes, WBCs of our body, like polymorphonuclear leukocytes, PMNL, neutrophil is the short form of this. So, सेलुलर बैरियर में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की बात की गई है कि कौन से सेल्स हैं जो आपके बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं. तो उसमें आपको पता ही है WBC ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं. एंड ये WBC के डिफरेंट टाइप्स के नाम ही दे रखे हैं, जिसमें PMNL WBC दे रखा है. एंड नेक्स्ट पेज पे फिर हम जाएंगे. नेक्स्ट हम सेलुलर बैरियर्स बात करते हैं. उसमें और भी सेल्स हैं जैसे मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर in the blood, as well as macrophages in the tissues can phagocyte and destroy the microbes. So these are few kinds of monocytes and natural killer. These are few kinds of blood WBC cells which are giving cellular immunity division of innate immunity. Now, fourth kind of barrier is cytokine barrier, and virus infected cells secrete protein called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. cytokine barrier में हम जिसकी बात करते हैं वो एक ऐसा आपका cytokine barrier is that type of barrier जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, एक बार जिनको वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है वो सेल्स दोबारा से फिर इन्फेक्शन नहीं होता उनको, बिकॉज
उनके अंदर कुछ पुराने सेल्स कोई ऐसा केमिकल निकालते हैं जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, और वो इंटरफेरॉन दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा के रखता है. So that is the whole innate immunity, about 4 kinds of barrier in the innate immunity. And now I would like to show you the diagram of few leukocytes and macrophages, so that you know that which kind of cells I am talking about. And you can see here in this image that how the white blood cell is engulfing the bacterium and killing the pathogen. So this is diagram is showing you phagocytosis, the innate non-specific immunity. This is a phagocyte, the light green color, the light green color white blood cell, and it is having the receptors on it. And this is a pathogen. You can see the pathogen is having some proteins on it. So the pathogen interact with the phagocyte receptors, and see, the pathogen is interacting with the phagocyte receptors, means दोनों में लॉक और की जैसा मैकेनिज्म हो जाता है पैथोजन और वाइट ब्लड सेल में, और पैथोजन को पूरा इनगल्फ कर लेता है phagocyte macrophage. This cell is known as phagocyte, or this cell is also known as macrophage. Big eaters. Macro means big and phage means eating. So white blood cells पैथोजन को अंदर लेकर सीडोपोडिया जैसा उसको कवर करके और अंदर लेकर it is digested inside the food vacuole of the phagos, or we can say it is digested inside the phagosome. The digestion of pathogen occurs, it is destroyed, and this is the then small parts of the pathogen is shown to the other WBCs, that is from the MHC complex. So this is antigen presenting cell. So phagocytosis, after phagocytosis भी उसका एक रोल प्ले होता है कि phagocytosis के बाद भी अपने मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे, MHC टाइप मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे उसी पैथोजन का प्रोटीन को वो दूसरे WBCs को शो करता है, ताकि अंदर के भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं पैथोजन की, वो भी उससे भी डिटेक्शन हो पाए. छोटे छोटे से एंटीजेंस वगैरह जो भी इस पैथोजन के होंगे, उनसे भी इम्यूनिटी डेवलप कराता है. तो ये एक ऐसी फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइट एक ऐसे WBCs हैं जो कि इनने डिफेंस तो कर ही रहे हैं, बट अडेप्टिव डिफेंस जो कि आपकी दूसरी तरह की इम्यूनिटी है, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं, उसको भी एक्टिवेट करते हैं. एग्जाम्पल आगे इसमें थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं. Phagocytosis, phagocyte engulf large prokaryotic cells such as bacteria, eukaryote, such as yeast cells, dead cells, to kill them, or small particles to remove them from circulation. This process was described by Chanikov, who introduced the word phagocyte while conducting his work on water flea Daphnia. And although in lower eukaryote, phagocytosis is mainly used to acquire nutrients, in higher eukaryote, phagocytes is mainly involved in killing invading pathogens, thus forming the part of immune system. और अब electron microscope एक figure दिखा रहे हैं. This is a macrophage cell isolated on the background monocytes close view of the immune. 3-dimensional view दिखाया आपको एक macrophage का. Macrophage is a type of white blood cell which is a phagocyte. ये white blood cell का type होता है जो कि एक phagocyte भी है, जो कि अभी अभी हमने देखा किस तरीके से डेड सेल्स की स्कैवेंजिंग भी करता है और हमेशा उनको रिमूव करता रहता है, फॉरेन बॉडीज पैथोजेनिक माइक्रोब्स को भी खाता रहता है. एंड किस करता है वो, कैसे करता है? बाय प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड्स. सो नाउ वी मूव टू अगेन टू द एनसीईआरटी पोर्शन एंड वी विल study what is the adaptive immunity. Adaptive immunity is the second line of defense after the innate immunity. So acquired, it's also known as acquired immunity. Acquired immunity, on the other hand, is a pathogen specific. It is characterized by memory. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. So acquired immunity एक ऐसी immunity है जो pathogen specific है, मतलब किसी पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलर टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी.
तो ये स्पेशलाइज्ड होती है अपने कामों में। तो इसमें भी जैसे दो तरह के इसके भी दो तरह के डिविजन्स हैं, टी सेल एंड बी सेल्स इम्यूनिटी। तो टी सेल्स जिस तरह से एक्टिवेट होते हैं और जिन पैथोजन से एक्टिवेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मैकेनिज्म में rather than the बी सेल्स। तो इसीलिए बोला है इट इज स्पेसिफिक, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। और प्लस दिस मीन्स व्हेन बॉडी इनकाउंटर्स, और इसका ये भी मीन्स आगे बता रखा है कि एक बार जब पैथोजन फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर डिटेक्ट हो गया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स ये देगी, और लो इंटेंसिटी का वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा इम्यूनिटी के थ्रू, उसके अगेंस्ट लड़ेगी। एंड सब्सिक्वेंट इनकाउंटर जब उसी पैथोजन से दोबारा से होगा तो यही रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स ये कहलाएगा। तो it will become a secondary response, and this is ascribed to the fact that our body appears to have memory of first encounter। तो इससे एक और प्रोसेस पता चल गई कि ये मीनिंग था प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी की प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इट रिमेंबर्स द फर्स्ट primary response, and then if same kind of pathogen comes again, so the response against it is heightened, and that is known as secondary response। तो और जोर शोर से लड़ती है दूसरी बार अगर सेम पैथोजन आ गया, तो इसको मेमोरी की एबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट हैज मेमोरी प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी से दैट the acquired immunity can detect it again। Now we will move to the primary and the secondary immune responses are carried out with the help of the two special types of lymphocytes present in our blood। So primary response हो चाहे secondary response हो, ये दो तरह के lymphocytes से होता है। ब्लड में दो तरह के cells होते हैं, B cells और T cells। The B cells produces an army of protein in response to pathogens into our blood to fight with them। B cells एक बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं और जिनकी वजह से जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो बी सेल्स आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स that produces the antibody and that circulates in our blood, and then we can fight with them, fight with the microbes, against the microbes through the antibody। These proteins are called antibodies। The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them। तो T cells खुद एंटीबॉडीज तो नहीं बनाते, बट बी सेल्स को हेल्प करते हैं बनाने के लिए एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप्स की। जैसे अभी हमने पहले देखा था डायग्राम में कि किस तरह से पैगोसाइट हेल्प कर रहा था, एमएचसी के थ्रू वो डिटेक्ट करा रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी पैथोजन के। सेम एमएचसी जो होते हैं वो कुछ एमएचसी मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बी सेल के रिसेप्टर से जाकर उन एंटीजन्स को डिटेक्ट करवाते हैं। तो हो गया कि टी सेल्स ने या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स ने बी सेल्स के लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट किया। ऐसे ही कुछ और टी सेल्स होते हैं जैसे कि टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो भी उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट रिसेप्टर्स शो द एंटीजेंस टू द बी सेल्स। सो व्हेन बी सेल्स हैव रिकॉग्नाइज्ड द सेम एंटीजेंस present on the T cells receptors, so B cells get activated and वो उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते। तो इसी को बोला है कि T cells एंटीबॉडीज खुद नहीं बनाएंगे बट B cells को हेल्प करेंगे बनाने में। Each antibody molecule has 4 polypeptide chain and 2 small chain light chains and 2 longer chains heavy chains। अब ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। आपके वाई शेप के मॉलिक्यूल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम एज सच भी आता है, लेबल करने के लिए भी आ जाता है, बनाने के लिए भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं सबसे आगे की तरफ और वहां पर एंटीजन पकड़े जाते हैं। एंटीजन मीन्स होते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स। तो फॉरेन में से कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी को उसके खिलाफ लड़ना है तो उसको इस जगह पे आके, जैसे यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनी हुई हैं, तो इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के इन लॉक्स में वो इन की तरह आके फंस जाता है।
एंटीजन की तरह जैसे चाबी लॉक के उसमें फिट हो जाती है, वैसे ही एंटीजन भी पर्टिकुलर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स में एंटीबॉडीज में आके फंस जाता है और फिर ये डिटेक्ट हो जाता है। अब ये बी सेल का मॉलिक्यूल या फिर अगर ये एंटीबॉडी, दो तरीके से एंटीबॉडीज आपको बॉडी में मिलती हैं, ब्लड में सर्कुलेट होती रहती हैं, तो फिर वहां पर भी एंटीजन डिटेक्ट हो सकता है, वहां पे भी किसी बैक्टीरिया को एंटीबॉडी पकड़ सकती है, या फिर एंटीबॉडीज आपकी बी सेल से ही अटैच्ड रहती हैं, तो वो एंटीबॉडीज डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट करके और उनमें से और इसी तरह की एंटीबॉडी मल्टीप्लाई करने के लिए आपका प्लाज्मा सेल्स को बना में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लाज्मा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बी सेल्स के ही डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, जो बी सेल्स के एक्टिवेशन से बने हैं। और प्लाज्मा सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नंबर में बन जाती है। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन्स बनाएगी, तो प्लाज्मा सेल्स सेम तरह की एंटीबॉडी जो एक्टिवेट हुई है उसी को ही लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में रिलीज करते रहते हैं। और प्लाज्मा हमारे ब्लड का पोर्शन भी है, फ्लूइड पोर्शन, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि प्लाज्मा सेल्स का काम है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनाना, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते रहना। तो इन साइट्स से, ये जो साइट्स हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर रोटेट हो रहा है, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट से एंटीजन डिटेक्ट हो जाता है और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बी सेल के थ्रू, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल सी पोर्शन से बी सेल से जुड़े हुए होते हैं, तो उन बी सेल्स को एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और वो प्लाज्मा सेल इन्हीं तरह की एंटीबॉडीज, इसी तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को और ज्यादा नंबर में बनाता है, जिससे कि जो एंटीजन यहाँ पे आके फिट हुआ है उस एंटीजन के खिलाफ लड़ाई हो सके और इम्यून रिएक्शन हो सके। इसी को बोलते हैं बी सेल टाइप इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडीज जो बी, जिनमें से बी सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते। अब और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। जो अंदर वाला वाई शेप का स्ट्रक्चर है इनसाइड, दैट इज कंप्लीट वाई, तो दैट इज योर हैवी चेन। यहाँ पे मार्क भी हो रखा है हैवी चेन, ये हैवी चेन है और ये पूरी हैवी चेन है। ब्राउनिश जो पार्ट है दैट इज सेपरेटली कलर्ड ब्राउन, इसको इसीलिए करा हुआ है क्योंकि ये कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। ये रीजन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइट ब्लू को अगर छोड़ दिया जाए तो दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ heavy chain, and the blue region, the light blue region at the top is the variable region of heavy chain। तो वेरिएबल रीजन क्यों बोला, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट है यहाँ पर और यहाँ के अमाइनो एसिड हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होते हैं बिकॉज वो एंटीजन स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी चेन्स यहाँ पे ये भी बच गई, बाहर वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं दो यहाँ पर, तो इनमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही जो पिंक कलर का रीजन है वो कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, और जो येलो कलर का पोर्शन है वो भी वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। तो दो हैवी और दो लाइट चेन से ये कंप्लीट तो लाइट चेन कहलाएगी, बट इसका ऊपर वाला पोर्शन वेरिएबल रीजन कहलाएगा। आपकी बुक में वेरिएबल रीजन का कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं है और आपको रिमेम्बर रखने की जरूरत भी नहीं है, बट आपको ये जरूर रिमेम्बर रखना है कि एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दो हैवी चेन्स अंदर वाली कंप्लीट वाई और दो लाइट चेन्स बाहर वाली, इनसे बना है। और ये डबल एस करके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं और जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इनको, दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में बनते हैं। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, प्रोटीन बेस्ड स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी। सो इसी वजह से अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर को प्रोटीन्स कहते हैं। देन अमाइनो एसिड है तो एक चेन एक तरफ एन टर्मिनल होगा, तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट पे इस तरफ एन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अपोजिट तरफ सी टर्मिनल होगा। तो हर एक चेन में एक एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की वजह से ये रहता है। नाउ इसके को फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि द ईच एंटीबॉडी, लास्ट पैराग्राफ में लाइन देखो, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 small light chains and 2 longer heavy chains। Now we will move further।
सो ये फॉर्मूले फॉर्म में भी लिखा जा सकता है H2L2, दैट मीन्स हैवी टू एंड लाइट टू। तो दो तरह की चेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिली एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ 4 तरह के एंटीबॉडीज के नाम दे रखे हैं कि IgA, IgM, IgE एंड IgG। एंड आई कैपिटल एंड जी स्मॉल में क्यों लिखा है? बिकॉज इम्यूनोग्लोबुलिन, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब इम्यून सिस्टम का प्रोटीन, इम्यून सिस्टम से काम करने वाली, इम्यूनो वर्ड इम्यूनिटी के लिए आ रहा है। तो ऐसा प्रोटीन्स जो कि इम्यूनिटी को में रोल प्ले कर रहे हैं, इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट मीन्स द अनदर नेम फॉर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को लिखने का तरीका यही है, IgA टाइप, IgM, IgE, IgG एंड सम ऑफ देम। Cartoon of antibody is given in the figure, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response. एंटीबॉडीज खून में मिलती हैं, इसीलिए इस रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ह्यूमरल मीन्स द रिस्पॉन्स विच इज ड्यू टू द liquid. So fluid is also a major liquid of our body, so it is moving in our circulatory system. So इसके अंदर एंटीबॉडीज मिल रही हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्स humoral response भी कहा जाता है. It is the response due to the blood. This is one of two types of the acquired immune response. The acquired immune response का दूसरा टाइप होता है ये, एक टाइप है उनमें से humoral response. तो दूसरा टाइप क्या है? The second type is called cell mediated immune response और cell mediated immunity, CMI. दूसरे रिस्पॉन्स को, एक्वायर्ड के दूसरे टाइप को CMI कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. The T lymphocyte mediates CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily. The transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. जब भी कोई भी ऑर्गन अगर ह्यूमन का प्रॉब्लम में आता है, आई, लिवर, किडनी फेल हो जाते हैं काम करने के लिए, तो ट्रांसप्लांटेशन ही एक इलाज रह जाता है जो पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रखता है, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हेल्प करता है. तो ट्रांसप्लांटेशन के वक्त हम किसी और का, डोनर का ऑर्गन अपने अंदर लगाएंगे या पेशेंट के अंदर लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो एक फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होगा, तो इतनी जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं होगा. इसी वजह से ट्रांसप्लांट करने वाले में, ट्रांसप्लांटेशन के दौरान डोनर और रिसिपेंट दोनों को ऑर्गन्स को मैच किया जाता है. एंड देन हम किसी से भी नहीं ले सकते जस्ट ऐसे ही ट्रांसप्लांट लेकर कर दिया. तो व्हाट इज दैट डॉक्टर सीज? तो दोनों ऑर्गन्स में डॉक्टर क्या पहचानता है, उसको क्या देखने होते हैं, तब वो ट्रांसप्लांट करता है. चेक. तो डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर. ग्राफ्ट किसी पे भी से भी नहीं लगा सकते. ग्राफ्ट मतलब जिस चीज को हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसको ग्राफ्ट कहते हैं. तो ग्राफ्ट हम किसी मतलब पेशेंट में ऐसे ही नहीं लगा सकते, बिकॉज हमें चेक करना पड़ेगा वो, नहीं तो वो बहुत जल्दी या बहुत बाद में जाकर कभी जाकर रिजेक्ट कर सकती है बॉडी. तो टिश्यू मैचिंग करी जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करी जाती है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है बिफोर द टेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले. आफ्टर दिस अगर जो दोनों हो चुकी हैं और पेशेंट के अंदर लगा दी जाती हैं, तो देन उसके बाद भी इम्यूनो सप्रेसेंट उसको पूरी जिंदगी लेने पड़ते हैं. इम्यून सिस्टम को दबाने वाले, उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा लो लेवल पे किया जाता है ताकि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले. बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट, क्योंकि बॉडी के इम्यूनिटी के अंदर एबिलिटी है कि वो अपना और पराया जानती है, एंड द सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचान सकती है. एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. और CMI का ही रोल है इसमें कि किसी ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. अब एक्टिव और पैसिव immunity के divisions क्या है? When a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes
or other proteins, antibodies are produced in the body. जब कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म, होस्ट मतलब ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, उसके अंदर कोई भी बाहर से एंटीजन्स आ जाते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं, डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, हमारे खुद के डेड सेल्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, तो इनके खिलाफ बॉडी क्या करती है, एक्टिवेट होती है। तो इस तरह की एंटी एक्टिवेशन करके जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, डायरेक्ट फाइट करके जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसमें तो एंटीबॉडीज हमने खुद बनाई, एक्टिवेशन करके पैथोजन से तब एंटीबॉडीज बनी हमारी बॉडी में, तो हमने बोल दिया एक्टिव इम्यूनिटी। तो फिर पैसिव क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट। अगर बिना किसी एक्सपोजर के कोई एंटीजन हमारे अंदर नहीं आया, कोई डेड माइक्रोब्स हमारे अंदर नहीं आए, तब भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज हमने इंजेक्ट कर ली, प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो हमने लैब में बनाई, और बिना एक्सपोजर के ही एंटीजन के हमने वैक्सीन के थ्रू ले ली है। तो उस टाइप की जो हमारे अंदर इम्यूनिटी, जो हमने खुद नहीं बनाई बट आर्टिफिशियली हमारे अंदर आई है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक टाइम्स टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। यहाँ पे बताया एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। जब हम माइक्रोब्स को, मरे हुए माइक्रोब्स को एज अ वैक्सीन हम अपने अंदर डालते हैं, जिससे कि हमारे अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। So these antigens will neutralize the pathogenic agents during actual infections. Microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access to the body ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो यही बता रहे हैं कि माइक्रोब्स जब हमारे अंदर इम्यूनाइजेशन के लिए सेंस में बोल रहे हैं कि जब हम किसी का इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स पी, या कोई हमने कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट डाला है जो जिसके खिलाफ बॉडी धीरे धीरे, क्योंकि 5 साल तक पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, तो धीरे धीरे बॉडी पोलियो के वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है, वो भी नेचुरली बनाती है, तो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। बट जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हमने कभी अपने अंदर डाली हैं, तो प्रोटेक्ट करने के किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली बहुत जल्दी इंस्टेंटली हमें एंटीबॉडीज हमने डाली, इंजेक्शन लगा एंटीबॉडीज का, तो तब उस तरह की इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जैसे हमें पता है कि किसी को टेटनस हो जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए टेटनस का, या फिर किसी को बहुत गहरी चोट लगी, हमें लग रहा है कि उसमें, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि मे बी उस चोट के लगने की वजह से इंटरनल में गहरा वूंड होने की वजह से वूंड इन्फेक्टेड हो गया, उसमें थोड़ी की बाहर बाहर से मिट्टी वगैरह, या कोई किसी जंग वगैरह के चाकू वगैरह से मार दिया हो किसी ने, तो इस वजह से टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है। जब हम ये भी तो देखते हैं कि किसी को सांप काट लेता है, स्नेक बाइट, तो हम एंटी वेनम लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी। जब हम ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज लगा रहे हैं, फिर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसी पैथोजन को, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल। हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम होता है, जो मदर इनिशियल डेज में लैक्टेशन के दौरान बच्चे को पिलाती है, तो उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी होती है, रेडीमेड प्रोड्यूस्ड मदर की एंटीबॉडी ए होती है, IgA, तो ये इन्फेंट को बचाती है इन किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर माउथ थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फीटस भी प्लासेंटा के थ्रू, प्रेगनेंसी के थ्रू फीटस भी कनेक्टेड रहता है। These are some examples passive immunity. ये कुछ examples हैं passive immunity. Vaccination and immunization. The principles of immunization or vaccination is based on the property memory of the immune system. Vaccination और immunization का जो property है, वो memory पे depend होती है। हम जब वैक्सीन करवाते हैं,
किसी वैक्सीन लेते हैं तो वो हमारा इम्यून सिस्टम याद रखता है कि कौन सा पैथोजन अंदर आया है, फिर उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन करना है। तो इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन और पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन और वैक्सीन, इस तरह से हम कोई भी वैक्सीन क्या है, एक प्रिपरेशन है। तो एंटीजन के प्रोटीन पार्ट की या इनएक्टिवेटेड और वीक पैथोजन की प्रिपरेशन को वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो वैक्सीन आपकी यही है। दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट्स। सो इवन ये एंटीजन जो होंगे जो कि पैथोजन से मिल रहे हैं और इनएक्टिव पैथोजन से मिल रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी जो इम्यून सिस्टम होगा मेमोरी सेल्स को जनरेट करेगा, बी सेल्स और टी सेल्स बनाएगा दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। और ये सेल्स क्या करेंगे, पैथोजन को बहुत जल्दी से पहचान लेंगे और ओवरवेलम करके इन्वेडर्स को मार देंगे विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बनाकर। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन preparation containing antibody to the toxin even in the case of snake bites। जो मैं बात कर रही थी कि जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डालेंगे टेटनस और स्नेक बाइट के एंटीवेनम डालेंगे तो दैट इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। अब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एंटीजन को से बनी हुई एंटीजन के पॉलीपेप्टाइड को हम पैथोजन के पैथोजेनिसिटी वाले किसी भी पार्टिकल को एंटीजन के बैक्टीरिया और यीस्ट में भी ग्रो करा सकते हैं। क्यों, कैसे? कि हम एंटीजन का वही डीएनए का मॉलिक्यूल निकालेंगे जो वो पेप्टाइड बना रहे हैं एंड देन हम थ्रू वेक्टर किसी भी उसको प्लाज्मिड में जोड़कर बैक्टीरिया और यीस्ट में ग्रो कराते रहेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में, जब हमने बैक्टीरिया का कल्चर किया, यीस्ट का कल्चर किया, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको वो एंटीजन मिल जाएगा और फिर हम उसे एज अ वैक्सीन यूज कर लेंगे। Solution को as a vaccine. Vaccine produced by this approach allow large scale production, hence greater availability of immunization. तो ऐसे वैक्सीन जो बनते हैं थ्रू डीएनए जो बनते हैं, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी जो बनता है, उनको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। और उस जैसे एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो यीस्ट से बनाई जाती है और लार्ज स्केल पे अवेलेबल रहती है। अब हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही बड़े और पूरे कंट्रीज में अवेलेबल है। Now we will move to the next topic. Next topic is allergies. When you have gone to a new place, suddenly you have started sneezing, wheezing for no explained reason. When you went away, your symptoms disappear. तो आप किसी भी नई जगह पे जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि बिना किसी कारण ही आप बहुत ज्यादा छींक रहे हो, खांस रहे हो। तो वहां से उस जगह से चले जाओ थोड़ी देर के लिए तो आप कोई खांसना छींकना सब बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आप किसी चीज के लिए बहुत सेंसिटिव हो, उस इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज है उस नए इन्वायरमेंट में जो आपको जिससे एलर्जी है। तो ये रिएक्शन आपका एलर्जी कहलाता है। जैसे कि पॉलन से आपको एलर्जी हो सकती है, फ्लावर्स को आपने खुशबू के लिए सूंघा बट आपके नाक में पॉलन चले गए और फिर आपको बहुत छींके आने लगी, एकदम से आंखों से पानी आने लग गया और पानी बहने लगा। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। या माइट्स, घर में आपके कोई माइट्स या टिक्स हैं, कोई खटमल वगैरह आपको काट लिए किसी चादर बेड पे, और तो इस तरह से आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। The exaggerated response of the immune system to certain antigen present in environment is called allergy. So this is the definition. कि over extra response, exaggerated means heightened response. Immune system जब किसी एंटीजन के लिए environment में present एंटीजन के लिए करता है तो that reaction is known as allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. जो चीजों के लिए एलर्जी करी जाती रिएक्शन कराते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन माइट्स हो सकते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ऑफ दीज आर IgE टाइप। ज्यादातर एंटीबॉडी IgE टाइप की बनती हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स एंड डस्ट, पॉलन्स, एनिमल डेंडर एटसेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी के सिम्टम्स ये सब हैं। Allergy is due to the release of chemicals like histamines and serotonin from the mast cells.
मास्ट सेल्स हमारे ही सेल्स होते हैं बॉडी के, जो स्किन में ज्यादातर अमाउंट में होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होते हैं। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं आफ्टर एलर्जन से एक्सपोज होकर। वो एलर्जन से एक्सपोज होता है, मास्ट सेल्स के ऊपर ही आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं। तो आईजीई एंटीबॉडी जैसे ही किसी भी एलर्जन से एक्सपोज हुई, उन्होंने उसे डिटेक्ट किया, तो मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मास्ट सेल्स फिर क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी। और इन्हीं केमिकल्स की वजह से पेशेंट के अंदर एलर्जी शुरू हो जाती है। द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोसेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। थोड़े भी डोज से अगर एलर्जन के से एक्सपोज होता है पेशेंट, तो एलर्जी होती है। Or exposed or to injected with very small doses possible allergen, and the reaction studied. The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptom of allergy. अगर किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट में एलर्जी हो रही है, तो अगर हम ये सब ड्रग्स यूज करेंगे जैसे एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स को, तो हम एलर्जी के सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities in India suffer from allergy. तो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से अब इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि शुरू से ही जब बच्चे होते हैं वो एक ऐसे सेपरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई होती है, तो उनको वो एक्सपोज ही नहीं होते किसी भी इन्वायरमेंट की चीज से, तो उनको एलर्जी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, वीक रहता है, सेंसिटिविटी उनमें ज्यादा रहती है, हर नई चीज उनके लिए एक एलर्जन बन जाती है। तो इस वजह से इंडिया में मेट्रो सिटीज में ज्यादातर लोग एलर्जी और एस्थमा से सफर करते हैं। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। जो अर्ली लाइफ में उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिला, उसकी वजह से उनके अंदर एलर्जी होती है। Autoimmunity, memory-based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism, example pathogen for self cells. तो ऑटोइम्यूनिटी की बात यहाँ पर करी गई है कि मेमोरी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हायर वर्टिब्रेट्स में इस एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि हम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन और सेल्फ, अपने सेल्स के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं। While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. तो आपके इसके बारे में और चीजें पता होनी चाहिए क्या कि वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी कि किसी पैथोजन ने कोई टॉक्सिन बनाया, उसकी बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा केमिकल बना रहे हैं, तो बॉडी उस केमिकल को भी एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकती है, और पूरे पैथोजन को भी डिटेक्ट कर सकती है, पूरे बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट कर सकती है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। और एक्सपेरिमेंट जो हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं, इम्यूनोलॉजी इज द साइंस ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, तो स्टडी करने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हम जो स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो वो इन्हीं के ऊपर होते हैं कि किस तरह के एंटीजन के लिए किस तरह की एंटीबॉडी बनी, हमारी बॉडी ने कौन से एंटीजन के लिए क्या चीज रिएक्ट करी है। टू समटाइम्स सेकंड जो याद रखना है हमें वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी का, कि ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस बॉडी अटैक्ट सेल्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डीएनए में कुछ ऐसा चेंज आ गया है कि वो बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लगे हैं, अपने खुद के सेल्स को ही पहचान नहीं रहा और उन्हीं को अटैक कर रहा है। दिस रिजल्ट इन द डैमेज, इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है बॉडी को, और इसी को ही ऑटोइम्यूनिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आर्थराइटिस होता है, और जिसमें जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और सूज जाते हैं उनके जॉइंट्स। किसी भी छोटे छोटे जॉइंट्स जो होंगे, फिंगर जॉइंट्स, घुटने के, नी, इन सब के जॉइंट्स उनके मतलब स्वेल होने लगते हैं। अब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, और इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आपने अभी पढ़ा, जो इम्यूनिटी देता है। इम्यून सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी दैट गिव्स इम्यूनिटी टू अस, ड्यू टू विच वी हैव इम्यूनिटी। तो उसके अंदर ऑर्गन्स आएंगे, हमारे हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज और सेल्स होते हैं। इम्यून सिस्टम के भी अपने पर्टिकुलर सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं।
तो इम्यून सिस्टम के दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। सो एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, ये इम्यून सिस्टम का एक डायग्राम है, एक सिंपल सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। लिम्फ नोड्स दिखा रखे हैं, थाइमस ऑर्गन दिखा रखा है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखा रखे हैं। तो ये लिम्फ नोड से जुड़े हुए पूरी बॉडी में ड्रेन करते हैं, पूरी बॉडी में बिछे हुए ये इम्यून सिस्टम का डायग्राम है, जहाँ पे जॉइंट्स रीजन पे ज्यादातर पीस जैसे लिम्फ नोड्स, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जहां पर एंटीजन से अटैक होता है। कोई भी लिम्फ में बहता हुआ एंटीजन यहाँ पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम में ये चीजें आती है, लिम्फोइड ऑर्गन्स आएंगे, टिश्यूज आएंगे, ऑर्गन सेल्स आएंगे, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आएंगे, एंटीबॉडीज जैसे। एज यू हैव रेड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजन्स, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। इम्यून सिस्टम ये सारे काम करेगा, फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा, रिमेंबर भी करेगा। इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सब में भी रोल प्ले करेगा। लिम्फोइड ऑर्गन्स से शुरू हो रहा है। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स आकर, ये वो ऑर्गन्स जहाँ पे स्टार्ट होते हैं बनना, ओरिजिन मतलब स्टार्ट होना, बनना स्टार्ट होते हैं, मैच्योरेट होते हैं, मेच्योर होते हैं, और बड़े भी होते हैं लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को बोला गया है। तो ये यहाँ पर बनते भी हैं, मैच्योर भी होते हैं, और अपने नंबर भी बढ़ाते हैं, बड़े भी होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे हैं, दो ही हैं जहां पर ये ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन करते हैं, बोन मैरो और थाइमस। आपको सबको पता है कि बोन मैरो में सारे तरह का ब्लड बनता है। तो ब्लड का टाइप ही है एक डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स भी होता है। ब्लड डब्ल्यूबीसी के टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो में जब सारा ब्लड बनता है तो डब्ल्यूबीसी भी वही बनते हैं। तो वो आपका लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, वो भी प्राइमरी तरह का, कि वहां से ओरिजिन हो रही है आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स की। देन थाइमस, थाइमस दूसरी तरह का इम्यून सिस्टम है, चेस्ट रीजन में होता है, हार्ट के नीचे। तो वहां पर भी टी तरह, वहां पर बी सेल्स तो नहीं बनते, बट टी सेल्स वहां पर बनते भी हैं और मैच्योर। बी सेल्स और टी सेल्स दोनों बनते तो बोन मैरो में है, हर तरह के डब्ल्यूबीसी की तरह, बट सिर्फ टी सेल्स की मैचुरेशन आपके थाइमस में होती है, पर बी सेल्स की मैचुरेशन बोन में, बी सेल्स की मैचुरेशन आपकी बोन मैरो में होती है। टी सेल्स मैच्योर होने के लिए थाइमस में आते हैं, इसलिए उनका नाम टी रखा है। Now, after maturation, the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organ like spleen. अब lymphocytes mature होने के बाद इन organs में spleen में आ जाते हैं। तो spleen secondary lymphoid organ है। lymph nodes में आ जाते हैं। ये भी tonsils भी, pairs, patches भी small intestine के, और appendix भी, ये सब organs जो हैं, छोटे छोटे organs पूरी body में जो फैले हुए हैं। तो स्प्लीन आपका स्टमक के ऊपर होता है। लिम्फ नोड्स आपके पूरे बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम में पी शेप के, मैंने बताया, वहां पे फैले होते हैं, डायग्राम में आप देख रहे हो। एंड टॉन्सिल्स आपके सलाइवरी ग्लैंड्स और थ्रोट रीजन में होता है। एंड पियर्स पैचेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में टिश्यूज होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स से कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एंड अपेंडिक्स भी आपका एक छोटा सा इम्यून सिस्टम का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। The secondary lymphoid organ provides sites for the interaction of lymphocytes and antigen. यहाँ पर एक्चुअल अटैक होता है एंटीजन से, एक्चुअल लड़ाई जो होती है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती है, which then proliferate to become effector cells. अब एक बार जब वो एंटीजन से एक्सपोज हो गए हैं तो वो बड़े होकर और अपने अंदर चेंज लाकर इफेक्टर सेल्स में बदल जाते हैं। लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी शोन इन द फिगर। फिगर में आपको लोकेशन दिख रही है। तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर ब्लड सेल्स बन रहे हैं। द थाइमस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन, दो लोब्स होते हैं थाइमस में, वो नियर द हार्ट लोकेट होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होते हैं उसके नीचे। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, कीपिंग रिड्यूसिंग साइज विद एज, एंड बाय टाइम प्यूबर्टी अगेन इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज। तो थाइमस बचपन में तो बहुत बड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो थाइमस छोटा होने लगता है, और एडोलसेंस में आके बॉडी पैक उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो वो क्योंकि इम्यूनिटी डेवलपमेंट करता है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे एक एनवायरनमेंट देता है जहां पर मैच्योरिंग होगी टी लिम्फोसाइट्स की। थाइमस का ये रोल है। द स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप ऑर्गन
स्प्लीन बड़ा सा बीन शेप का ऑर्गन है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स को अपने अंदर रखता है। ये फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड का फिल्टर है स्प्लीन। ब्लड का एक ग्रेवयार्ड भी है। जब आरबीसी की उम्र पूरी होती है और किसी भी ब्लड सेल को मरना होता है तो वो आकर यहीं पर आकर मरता है और अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक करता है। तो इस तरीके से स्प्लीन ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को पकड़ सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आपने इस आज के लेक्चर में इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस था, इम्यून सिस्टम पे, और स्टार्टिंग हुई थी आपके किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को पैरासाइटिक बीमारियों से। With this, I'd like to end the session. Please like and subscribe my channel if you like the video, and I hope